आज की इस वीडियो में हम करेंगे गुलिवर्स ट्रेवल्स लेसन के क्वेश्चन आंसर्स एंड टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड? Answer: The captain sent the man to the land to look for water. Question number 2. Why did the man rush back to the ship? Answer: The man rushed back to the ship because they were chased by a giant. Question number 3. Choose the correct answer. First is the giant carried a reaping hook because reaping hook, this is reaping hook. Why he carried it? Option is he was fighting with the other giant, he was going to reap the corn, he wanted to frighten Gulliver. So correct option is he was going to reap the corn. Second question, they put Gulliver on the ground to look at him because. Option, they had never seen a human before, they thought he was a doll, they had never seen such a tiny man. So correct option is C. They had never seen such a tiny man. So they put Gulliver on the ground to look at him because they had never seen such a tiny man. Next is Gulliver was a farmer, a sailor, a dwarf, a giant. Correct option is Gulliver was a sailor. Question number 4. Name the creature to whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. Extinct means होता है लुप्त हो जाना. वो creature अब लुप्त हो गया है. Clue is given here. The word begins with the letter D. तो correct answer is dinosaur. D-I-N-O-S-A-U-R. Dinosaur. Next is now complete the following. Use the words given in the box. You can do this question in your textbook. Okay. So options are given here. See. First is as dash as a feather. Read all the option. Red, slow, black, gentle, warm, strong, sweet, light, white. So we can choose here light. As feather is a very light in weight. So as light as feather. Next, as dash as a tortoise. Slow as tortoise. Next, as dash as honey. So honey is sweet. We can write here as sweet as honey. Next is as dash as snow. Snow is very much white in color. So we can write here as white as snow. Next, as dash as an ox. So as you all know that ox is very strong. So we can write here strong as ox. As dash as night. So night is red, black, gentle, warm. We have 4 options. So black is correct answer because there is very much dark in the night. So as black as night. As dash as a rose. Rose is red in color. So as red as a rose. Next, as dash as a toast. Toast is a warm. गर्म ही अच्छा लगता है toast. ठंडा नहीं है ना. So as warm as a toast. Next, as dash as a breeze. As gentle as a breeze. Gentle. So you can do this question in your textbook. Let's come to the next question. यूज़ द अबव एक्सप्रेशंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसी के बेसिस पे इसको फिल करना है हमने. द ओल्ड मैन्स हेयर इज एज वाइट. व्हाट वाज वाइट इन द प्रीवियस क्वेश्चन? द वाइट वाज स्नो. सो द ओल्ड मैन्स हेयर एज वाइट एज स्नो. डू दिस. नेक्स्ट, हिज फीट वर एज कोल्ड. व्हाट वाज कोल्ड? एज कोल्ड एज आइस. The newspaper boy was as slow as tortoise. Next, I felt as light as feather. Feather was light in the previous question. Next question, create your own comparisons
for the following, work in pairs. So this question is based on your experience, on your choice. As tall as, tall आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, tree, building, whatever you like. So as tall as, I'm going to write here tree, you can write here according to your choice. As fast as, fast is as fast as a car, you can write here anything in name of any animal also, as fast as cheetah, है ना. As high as sky, sky is high, as high as sky. As angry as bull, as tiny as an ant. As brave as lion. Okay, next question. Look at the following examples. Some examples are given here. See, I was trying to climb over the fence when the giant saw me. Next, the farmer's wife was stroking the cat when her 1-year-old son entered. Okay, so both the actions were in the past. ये दोनों ही एक्शंस, दोनों ही सेंटेंसेस में दो दो एक्शंस हैं, दोनों एक्शंस पास्ट टेंस में हैं. जैसे was trying, ट्राई कर रहा था, एंड व्हेन द जायंट सॉ मी, सी का पास्ट टेंस सॉ. ठीक है. एंड द फार्मर्स वाइफ वाज स्ट्रोकिंग, ओके, एंड व्हेन हर 1-year-old सन एंटर्ड, पास्ट टेंस ऑफ एंटर इज एंटर्ड. तो दोनों ही एक्शंस जो हैं इस सेंटेंसेस में पास्ट टेंस में हैं. ओके, सो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. व्हेन द फर्स्ट वन वाज गोइंग ऑन, जब फर्स्ट एक्शन चल रहा है, वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, द सेकंड वन हैपेंड. एक एक्शन, फर्स्ट वाला एक्शन तो चल रहा है पास्ट टेंस में, और सेकंड एक्शन हो चुका है. जैसे आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस, मैं फेंस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था. व्हेन द जॉइंट सॉ मी, जब जॉइंट ने मुझे देखा, यानी जॉइंट ने उसको देख लिया था, लेकिन वो क्या कर रहा था, फेंस पे चढ़ रहा था. तो चढ़ने का काम हो रहा था उस टाइम पे, और देखने का काम हो चुका था. ओके, सो 2 एक्शंस हैं एक सेंटेंस में. 1 एक्शन वॉज गोइंग ऑन एंड सेकेंड वॉज हैपेंड. ओके, तो इन्हीं के बेसिस पे हमें, जैसे ये वाले सेंटेंसेस ऊपर हमने पढ़े हैं, आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस व्हेन द जायंट सॉ मी, इन्हीं बेसिस पे हमें इन सेंटेंसेस को मैच करना है. मैच द फॉलोइंग एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इन द लाइंस बिलो. व्हाट वॉज हैपनिंग, हैपनिंग कौन सा एक्शन हो रहा है, ये एक्शंस हो रहे हैं, एंड व्हाट हैपेंड ये हो चुकी हैं. ठीक है. सो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा था. लेटर लिखने का काम चल रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया, माई पेन रैन आउट. तो इसको हम मैच करेंगे इससे. आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई पेन रैन आउट. वी विल ऐड हियर व्हेन एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस. I will tell you later. Paul was looking out of the window. Paul was looking out of the window. Paul जो है वो विंडो से बाहर देख रहा था. क्यों देख रहा था? Because when he noticed a lovely butterfly. जब वो विंडो से बाहर देख रहा था तो उसने एक लवली प्यारी सी बटरफ्लाई को उसने नोटिस किया. He was looking for his dog. I met Arun. When I met Arun, he was looking for his dog. I was just completing the last answer. मैं अपना लास्ट आंसर कंप्लीट कर ही रहा था. When ma'am said stop writing, जब मैम ने बोला लिखना बंद करो. The man was painting the wall. Man was painting the wall. Man जो है वो वॉल को पेंट कर रहा था. He fell off the ladder. जब वो सीढ़ियों से गिरा, कब गिरा वो, जब वो वॉल को पेंट कर रहा था. अमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क. अमित अपना होमवर्क कर रहा था. द लाइट वेंट आउट. लाइट चली गई. माई मदर वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द बेल रैंग. डिनर पकाने का काम चल रहा था और क्या हो चुका था काम, व्हाट हैपेंड, बेल रैंग, बेल बजी, फ़ोन की बेल बजी या डोर बेल बजी, है ना, कुछ भी हो सकता है. सो अब हमें जो सेंटेंसेस हमने मैच किए हैं इनको हमने प्रॉपर तरीके से लिखना है, जैसे ये ऊपर लिखे हुए हैं. आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस. व्हेन से इन्होंने इन 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट किया है, ऐसे ही हमें भी इन सेंटेंसेस को कनेक्ट करके लिखना है. सो डू राइट लाइक दिस. आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन
my pen ran out. When Paul was looking out of the window, he noticed a lovely butterfly. When I met Arun, he was looking for his dog. I was just completing the last answer when ma'am said, stop writing. The man was painting the wall when he fell off the ladder. Amit was doing his homework when the lights went out. My mother was cooking dinner when the bell rang. So this question is finished. Let's come to the next question. When we compare two things or people, जब हम कोई भी दो चीज़ को या दो लोगों को आपस में कंपेयर करते हैं, we add ER और more. तो या तो हम ER लगाते हैं, जैसे हम दो लोगों को कंपेयर करेंगे, स्ट्रॉन्ग, राम इज स्ट्रॉन्ग, मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन राम. ठीक है, मोहन और राम को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमने स्ट्रॉन्ग के पीछे ER लगा दिया. या फिर मोर को भी हम ऐड कर सकते हैं टू डिस्क्राइबिंग वर्ड. व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर थिंग्स और पीपल, जब हम 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों को या लोगों को आपस में कंपेयर करते हैं, वी ऐड EST या मोस्ट. ठीक है, जब दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो हम ER का यूज़ करते हैं, और जब 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो हम EST और मोर की जगह पे मोस्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है, सी look at the following examples. Some examples are given here. When first 2 are compared and when all 3 are compared. See here, this is boat, this is car and this one is aeroplane. So यहाँ क्या लिखा है, boat is fast, car is faster than boat and aeroplane is fastest than all. See here, the sailboat is fast, द कार इज़ फास्टर देन द सेल बोट. अब ये सेल बोट और कार के बीच में कंपैरिजन है तो फास्टर, फास्ट के पीछे हमने ER लगाया. देखिए यहाँ पर दो चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे तो ER लगता है. ठीक है, द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल. और 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे तो EST, तो फास्ट के पीछे हमने EST लगाया, फास्टेस्ट ऑफ ऑल. ओके, जैसे यहाँ देखिए, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट. अब डिफ़िकल्ट के आगे हमने ER ना लगा के, डिफ़िकल्ट के आगे ये जो डिग्री है इसके आगे हमेशा मोर और मोस्ट, इन दोनों चीज़ों में कंपैरिजन होगा तो डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट. और अगर इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट. ये जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं. आपको कुछ मैं एग्जांपल्स दिखाती हूँ. यहाँ पर ये डिग्रीज़ हैं, आपको ये डिग्रीज़ जो है अपनी नोटबुक में लिखनी है और इनको अच्छे से लर्न भी करना है. डिग्रीज़ क्या होती हैं, जो फर्स्ट जो वर्ड होता है हमारे पास वो पॉजिटिव होता है, फिर उसको हम कंपैरेटिव और देन सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, जब दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है दैट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, और जब 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों की बात होती है तो दैट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. जैसे यहाँ पे है स्वीट, जब दो चीज़ों के बीच में करेंगे स्वीट, स्वीटर, हनी इज़ स्वीट और लड्डू इज़ स्वीटर देन हनी. ओके, एंड जलेबी इज़ स्वीटेस्ट ऑफ देम ऑल. 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों में स्वीटेस्ट EST लगेगा. यंग, यंगर, यंगेस्ट. हाई, हायर, हाईएस्ट. ओल्ड, ओल्डर. कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ER लगेगा एंड सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है, ओल्डेस्ट. वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट. नोबल, nobler, noblest. Wise, wiser, wisest. Large, larger, largest. Safe, safer, safest. Fine, finer, finest. Easy, easier, easiest. Lovely, lovelier, loveliest. Happy, happier, happiest. Heavy, heavier, heaviest. Healthy, healthier, healthiest. Pretty, prettier, prettiest. Merry, merrier, merriest. या मैरी में देखिए इनके पीछे जो Y है Y I में कन्वर्ट हुआ है. ठीक है, ये जितने भी Y वाले वर्ड हैं इन सब में Y जो है I में कन्वर्ट हो गया है, IER IEST. ओके, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट. देन वेट, वेटर, वेटेस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. हॉट, hotter, hottest. Fat, fatter, fattest. Difficult, more difficult, most difficult.
important, more important, most important. Next question is based on the same thing, degree. Correct the use of the describing words in the following sentences. ये देखिए, ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया है, दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल. ऑफ देम ऑल मीन्स तीन या तीन से ज़्यादा, दो चीज़ों में कंपैरिजन तो ये नहीं है. ऑफ देम ऑल यानी काफ़ी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है, तो हम ER नहीं लगाएंगे. सिंपल के लास्ट में क्या आएगा, EST. So correct answer will be this is the simplest problem of all. Okay, next is which is the lightest of the two parcels. अब ये दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है, दोनों पार्सल में लाइटेस्ट कौन सा है. तो दो चीज़ों में जब कंपैरिजन होता है वो कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसमें ER लगेगा. तो करेक्ट आंसर विल बी विच इज द लाइटर ऑफ द टू पार्सल्स. नेक्स्ट, ही इज क्लेवरर देन आई एम. वो मुझसे ज़्यादा क्लेवर है. सो ये करेक्ट आंसर है, दो चीज़ों में कंपैरिजन है ना, तो ही इज़ क्लेवरर देन आई एम, तो ER ही लगेगा. ये ऑलरेडी करेक्ट है यहाँ पर. आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू. आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू, दो चीज़ों के बीच में है, तो यहाँ बेस्ट नहीं आएगा, गुड, बेटर, बेस्ट इसका कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, सो आई लाइक दिस बेटर ऑफ देम टू. The flood became badder as the rain increased. Badder नहीं होता है, bad का worst होता है. So the flood became worst as the rain increased. Next is punctuate the following sentences. अभी नीचे जितने भी sentences दिए हुए हैं, हमें इनको punctuate करना है. punctuation क्या होती है? punctuations जो है कुछ marks होते हैं, जैसे कैपिटल लेटर का ध्यान रखना होता है हमें पंक्चुएशन में. फुल स्टॉप, कॉमास, क्वेश्चन मार्क, अपोस्ट्रॉफी एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. यहाँ जितने भी सेंटेंसेस, जैसे नेक्स्ट वेडनेसडे माय सिस्टर मीता इज़ गोइंग टू जॉइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे कोई कैपिटल लेटर नहीं है, जबकि हम सब जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट शुड बी कैपिटल, एंड जब सेंटेंस खत्म होता है तो अगर उसमें क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज फुल स्टॉप, कोमास. लेकिन इन किसी भी सेंटेंसेस में यहाँ पे कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की गई है, तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स बिल्कुल मिसिंग हैं. और पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स का हमें ध्यान रखना होता है, फुल स्टॉप है कि नहीं है, कोमास, क्वेश्चन मार्क, अपोस्ट्रॉफी जो ऊपर जो कोमास लगते हैं, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें यहाँ पे इन सेंटेंसेस को ये कंप्लीट किया है इधर. जैसे नेक्स्ट में एन कैपिटल कर दिया है. नेक्स्ट वेंसडे के बाद कोमा, माय सिस्टर मीता इज गोइंग टू जॉइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट का एस कैपिटल, बैंक का बी कैपिटल, एंड इंडिया का आई कैपिटल. ठीक है, एंड लास्ट में फुल स्टॉप. Second is the dog wags its tail. The T capital wags its tail when it's pleased. Okay, but a cat waves its tail when it's angry. तो यहाँ पे भी हमने फुल स्टॉप वगैरह का सब ध्यान रखा है. नेक्स्ट, व्हेन आई वेंट फिशिंग, जब मैं फिशिंग के लिए जाता हूँ, व्हेन में W कैपिटल, फिशिंग के बाद कोमा. आई कॉट एन ओल्ड शू, अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैड कॉल्ड. जब दो तीन चीज़ें एक साथ दी जाती हैं तो उसके बाद कोमा लगता ही है. शी फेड द बेबी, उसने बेबी को खाना खिलाया. वॉश द डिशेज, फिर डिशेज को वॉश की. पुट द लाइट्स ऑफ की, एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चली गई. अलग अलग काम उसने किए, तो एक काम के बाद कोमा, देन सेकंड के बाद यहाँ पे कोमा, और फिर थर्ड के बाद वैसे यहाँ, एंड देन वेंट टू स्लीप, फिर फुल स्टॉप. Wasn't Tim born on the 26th of January, 1988. यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या टीम का जो बर्थ है, जो जन्म है, वो 26 जनवरी 1989 में नहीं हुआ है. ये सब पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, अब ये आया यहाँ पे अपना एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये ऊपर अपोस्ट्रॉफी, कोमा. ठीक है, ओ नो द बस हैज़ गॉन, बस तो चली गई. ये लास्ट क्वेश्चन है आपका. लेट्स फाइंड आउट, फिल इन द ब्लैंक्स है ये. अ जाइंट ट्री, रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया में जो रेडवुड ट्रीज हैं वो सबसे जाइंट है, सबसे बड़े हैं. एंड जाइंट बर्ड क्या है वो हमें बताना है. जाइंट बर्ड इज ऑस्ट्रिच. जाइंट लैंड एनिमल इज एलिफेंट. And giant water creature is blue whale.
ओके, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू सो मच।